जिस तरह से हम लोग एक्चुअली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द ट्रेनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आप लोग यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे होते हैं वो आप लोग को आपकी फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक्चुअली को देखिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यू नीड टू कम आउट विद समथिंग न्यू। अभी हम लोग सारी चीज़ें वही पुरानी चीज़ें कर रहे होते हैं, उसके बाद आप जाके इंडस्ट्री में आते हैं, और हम लोग अगर हम ट्रेन कर रहे होते हैं, आपको 6 महीने लगा रहे होते हैं, आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं कंपनी को, आपका रिज्यूमे अपडेट करते हैं और स्टार्ट सेंडिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग 5 कंपनी के स्टूडेंट यहाँ पे 2,000 के लिए जॉब छोड़ रहे हो, ठीक है। हम लोग अगर ट्रेन कर रहे हैं किसी को 6 महीने 1 साल, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम हमारे से 3 से 4 साल में अगर हम ट्रेन करते हैं और आप लोग मूव आउट करते रहेंगे तो हम लोग उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और क्योंकि हम लोग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हमारा ब्रेड एंड बटर हमारे बिजनेस से, ठीक है। इफ कम आउट एंड यूनिवर्सिटी में आगे ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते वहाँ। The question that I asked still remains. Do you think that universities or students are even interested in working with you? Chahe free ho, chahe paid ho. Have you had that kind of an experience? Well, to be fair, there's no, you can't just give an answer just get you just, sort of broad, generalization to nahi kar sakte. So, I don't want to get into the mode of generalizing the students interested नहीं. जो इंटरेस्टेड है उनको पता है, वो इंटरेस्टेड है अपने प्रोफेशन में, अपने करियर्स में, अपने आज में और अपने फ्यूचर में। तो इस तरह की भी जाहिर बात है हमारे मुल्क में देयर मस्ट बी अपना क्या बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ वेरी वेरी सीरियस यंगस्टर्स एंड देयर माइट बी नॉट सीरियस प्लेयर्स आल्सो। सो ऑफ कोर्स हमारी कंपनी में वो लोग बैठे हुए हैं हु आर सीरियस। सो आई गेस दैट्स द आंसर। So a question to the students. How do you show that you are committed or dedicated to a company? Or to your own To your own career path. to your own career. To your own You future. don't need to be dedicated to a company. How do you demonstrate that? How do you do it? The question is, how do you demonstrate your commitment to yourself as a professional, or how do you demonstrate your commitment to a company? And for example, you go to USUSA's company, you go to Nokia, or you go to corporates and you say कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ. How do you prove to them that you are committed to work here? As an individual, I would like to fulfill my goals. What are my goals? I would like to approach towards them. And for the company, I would like to achieve my company's goal, whatever I am asked to do. I will definitely try my best. Doing something which you are asked to, I would rather like to do something out of the box. I believe in the abilities, or उनसे अपनी abilities से use करते हुए I do something that will make me prominent. All right, मतलब मैं ऐसी I'm just being a little bit interactive. That's all. I don't need to discourage it. One from this. सारी लड़कियाँ बोल गई हैं भाई शर्म करो करके. देखें आप सबने जो आंसर्स दिए हैं ना, those are, let's say for me those are अपना post employment कि अब आपकी जॉब लग गई, you want to be innovative, you want to do something out of the box, और जो उन्होंने कहा, you have to convince me that you are worth it to be part of my organization, right? So this is all pre-employment. Pre-employment, what I am looking for, or what I believe that the world is looking for. Forget about me. This is a global world. You could be on a phone interview and probably interviewing with Merck Sharp and Dohme out of USA or some major oil company, anywhere in the world. So what I am looking for is a student कि वो जिस फील्ड में जॉब ढूंढ रहा है, जिस फील्ड में उसने अपनी प्रोफेशन बनाई, जैसे वो हेल्थ केयर है, वो फाइनेंस है, वो ऑयल एंड गैस है, वो मीडिया है. I want to see that the student takes his domain, which is that area, that sector, or that sector to him should be, I guess मैं उसको अगर वैसे ले जाऊँ तो should be his Bollywood or should be his or her अपना Hollywood. कि ये this is what I am interested in. All the players in that sector are the stars. So अगर वो oil and gas है तो अपने Exxon could be the Shah Rukh Khan and Shell could be the Robert De Niro of that industry. They should be knowing the
players and the stars in that industry. They should know how that industry has evolved across history. इसमें जो बड़े players हैं वो बड़े बने किस तरह, क्या-क्या mergers हुए, क्या-क्या acquisitions. You should be following. You should know your domain. अगर वो healthcare है, अगर वो education है, अगर वो कोई social area है, you should be so passionate about it. And you should be animated about it. You should know that industry inside out. Like I said, जिस तरह एक youngster जो है वो एक rock star को follow करता है, या वो entertainment world को follow करता है, एक professional, एक MBA, एक IT का मतलब अपनी domain के अंदर उसको उतना ही excited और passionate होना चाहिए। और उसके जो leaders हैं, उसके जो key managers हैं, उसके जो दुनिया में जो उस sector में जो movers and shakers हैं, they should know them, like we know the stars. उनकी gossip कहाँ गए, किस कंपनी से किस कंपनी में आए, किस तरह evolve की, Disney का CEO कैसे बना, all of that. You should know your industry इतनी ज़्यादा comprehensively and passionately for you to then be able to sit in front of an interview or even get the chance of an interview in a truly global opportunity and then convince them that you're it. There's no youngster out there who knows that industry as much as you. That's what I mean. Right. Can I just butt in before Shoaib says anything? Just ask you two questions. One is, how many here are in the field of business, studying business? Yeah, कुछ और how? Who does that? You don't figure what you're right. Okay, hands down. How many of you are IT? Despite the fact that you are studying business or IT, in दोनों disciplines के अलावा तो आपको ये कोई पढ़ रहा है, right? So there are different facets within business or different specializations within IT. Tell me what in the next 10 years or the next 5 years, अगर पाकिस्तान रहा इंशाल्लाह, what segment, what kind of a business do you see yourself in? Do you see yourself in a software house, in a hospital? Do you see yourself in an ad agency? Just yell it out. Okay, 8 minutes. How can you yell it out? So, what's it? Yeah. Telecommunication company. Telecommunications company. Investment bank. Investment bank. Marketing agencies. What? FMCG. FMCG. A 7-star hotel. Huh? A 7-star hotel. A 7-star hotel in Pakistan. Definitely कुछ हो ही जाएगा। Teaching. I love her. She's going to be a teacher. Anyone else? Media. Anyone else in the back? Electric utilities. Electric utilities. Okay. Tuitions. Tuitions. Anis Hussain the second. There's going to be Anis Hussain the second. Okay. So and I need one more. Speaker. A motivational speaker. Airlines? Okay. Now, my question to the panelists is this. It's a very diverse range. What should they be thinking? Now they're studying either business or they're studying technology. How should they approach making a career in the airline industry? Or how should they make an approach to set up their own company and become a motivational speaker? How can they take all of these passions that they have and turn them into profitable ventures? Africa today is a new age of business. If they want to do something, how can we as the industry ensure that they do so? Can you just, bring random some minutes live inshallah. But with a business background or with an IT background and with all these desires and interests, how can the industry, or what word of advice, what piece of advice would you give to them? How should they approach their dreams? मुझे ये पूछना है कि आप लोग कौन से सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं? First, second, third, last, fourth, so throughout. How many of you are from last year? Final year semesters. Final year. Final semesters. फाइनल सेमेस्टर में आप लोग के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से मुझे 2-3 बता दें। Research related project. कौन सा है, किस पे रिसर्च कर रहे हो? We currently completed a research on research on my course now. So I can do that, or if you want to do research
किसी और से भी आपने पूछा था? Japanese team. Final year students only. Nabil final year. Final year students. आज weight loss तो हो ही जाएगा बेटा। ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ते I have the selective advertising and that we have to come up with an ad of a particular product that we have to redesign the whole ad and just the ad is not going to be bad. Any product, so that's what we're doing. Which year is student? So yeah, we have to come up with a big idea, campaign ideas. Was the president involved in this WhatsApp show campaign? अच्छा मुझे IT का कोई भी final year student नहीं आता। IT final year students? No. अच्छा final year projects में हम लोग जो research कर रहे हैं, it's mostly जो आप लोग कह रहे हैं, मोर पे कर रहे हैं या आपको बात है, तो all multinational companies. ठीक है, not a single, इग्लू में क्यों नहीं कर रहे आप लोग? Why one only? Huh? It's a local company. It's a big, one of the biggest company in Anglo. Why not Igloo? मैं एक छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। किसी बड़े की काम। He asked a question. क्योंकि हम लोग लास्ट इवेंट में जितने लोग मिले थे वो उनका मोस्टली जो काम करना चाह रहे थे तो मल्टीनेशनल में करना चाह रहे थे या एफएमसीजी में करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप लोग, क्योंकि हम लोग यही बोल रहे थे पाकिस्तान यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, या 3-4 साल बाद, और हम लोगों ने काम की मल्टीनेशनल के साथ करना कि अगर आप लोकल के साथ काम नहीं करेंगे और लोकल कंपनीज ग्रो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इस तरह से नहीं करेगा। यू हैव टू कीप फेथ ऑन योर कंट्री। जब तक कंट्री फेथ नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, कम बैक टू कि आप लोग जो क्वेश्चन था राबिया का कि किस तरह से बेंचमार्क कर सकते हैं आपको हमारी इंडस्ट्री में, राइट? क्वेश्चन ही बोलिए। These very diverse interests, like what advice would you give to them? For example, she wants to get into airlines. How should they pursue that dream? After we budget, how should they pursue it? ठीक है, उसके लिए आपको अपनी रिसर्च जिस तरह से लोग कर रहे हैं, you have to come up with some research और उसके कुछ न्यू आइडिया के साथ आप लोग हमारे पास आए या आप किसी इंडस्ट्री को आप लोग चूज कर रहे हैं, कुछ न्यू आइडिया के साथ आए। देयर कंपनीज वो वर्किंग फॉर 100 years, तो उनकी जो टोटल वर्थ है नेट वर्थ इज 5 billion और 6 billion, एंड दे आर ग्रुपॉन। ये ग्रुपॉन लाइक ओल्ड कंपनी, उसकी नेट वर्थ इज लाइक 5-6 billion। उसकी जो अगर आप टोटल डिफरेंस देखें, इट्स लाइक 95 to 96 इज नो डिफरेंस, ये डिफरेंस है, लेकिन उसकी जो नेट वर्थ है मोर देन 5 billion, क्योंकि उसका एक न्यू आइडिया के साथ वो लोग आए। यू गाइस कम अप विद सम न्यू आइडिया। जब आप न्यू आइडियाज के साथ में आएंगे तो कंपनी से जब तक बेनिफिट नहीं होगा, और हमेशा ऐसे लोगों को बेनिफिट हायर करेंगे जिससे कंपनी को बेनिफिट। एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन है, मुझे आप ये बताइए कि आप लोग बोलेंगे क्रिएटिव और न्यू आइडियाज के साथ आप, तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोग कुछ मतलब पहले उनको और कोई ऐसी अट्रैक्टिव ऑफर्स या कोई प्रमोशन और इस तरह मतलब कुछ अट्रैक्शन तो रखो कि वो मतलब आपकी तरफ अपने किस किस्म की अट्रैक्शन होनी चाहिए? सर हम लोग बाहर क्यों जाते हैं? आप मुझे बताएं लोगों का। इसी वजह से क्योंकि रिकग्निशन मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी है, मतलब जो भी आपका पैसे से आपको वो अट्रैक्ट करें, बेसिकली रिकग्निशन आपका है, आपको जॉब सिक्योरिटी, तो ये बेसिक कुछ फैक्टर्स है जिससे एक नॉर्मल बैचलर स्टूडेंट अगर उसके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वो आगे आएगा और वो खुद कोशिश करेगा कि आपको अप्रोच करें। लेकिन अगर आप लोगों की साइड पे आपने एक कह दिया उसके बाद मतलब तो वो तो ये समझेंगे ना कि यार जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि ये लोग यहाँ पे बैठे हैं इसलिए उन्होंने बोल दिया, तो क्या कहते हैं वो तो नहीं इतना अट्रैक्ट होता। क्यों बाहर जा रहे हैं? कोई रीज़न होगा ना, कोई तो रीज़न होगा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत बिल्कुल है, लेकिन हम लोग बाहर जाते हैं क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से वो अपनी जो ऑफरिंग्स हैं उनको ज़्यादा बेटर तरीके से वो प्रमोट करें। देखिए बाहर की कंपनी स्टार्ट बाहर आपको ज़्यादा जॉब से अवेलेबल हैं,
तो वहाँ पे लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो लोग जाके जॉब नहीं कर रहे सर, वो अपनी कंपनीज में स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब वो अपनी कंपनी में स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट होती है मार्केट में। इस तरह से जब आप लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, व्हाई यू आर ओनली लुकिंग फॉर जॉब ओनली, आप अपनी कंपनी में स्टार्ट नहीं करना चाहते? फाइनेंशियल इश्यूज देखिए, आपके पास कोई आइडिया होगा कैशलेस प्रोग्राम, सही है। उसमें था कि इनोवेटिव कोई भी मतलब एक टीम होगी जिससे मतलब और अराउंड कराची 9 टीम और 10 टीम विल बी सिलेक्टेड एंड क्या कहते हैं उनको मेंटर करना चाहेगा उनके आइडिया को और उनको फिर कंपनी साथ कराची जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप समझते हैं कि 10 टीम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 5 पीपल वुड बी इनफ? डू यू थिंक दैट? स्टार्ट विद समथिंग। और दूसरी बात माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक्चुअली तो माइक्रोसॉफ्ट का भाषाओं के साथ I guess we sort of digress a little bit. आपने कहा कि हम लोग बाहर चले जाएंगे या बाहर जाते हैं, हम लोग जाए बाहर, जिसको बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट्स ग्रेट थिंग टू टेक इट इन लाइफ। मैंने जॉब में शुरू में जितने लोग बैठे हैं, दे वांट टू गो एंड बिकम इंटरनेशनल एम्प्लॉईज, वंडरफुल। उसके अंदर भी पाकिस्तान के लिए तो अपना विन विन है, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कि अगर आप मतलब ये इन वे सॉर्ट ऑफ अपना थ्रेड आपने इंडस्ट्री की तरफ थी कि हम बाहर चले जाएंगे या हम बाहर चले जाएंगे, तो ऐसे क्या इट इज यू नो, मैं तो इसको अपना नेगेटिवली बिल्कुल नहीं है। आई लव टू सी ऑल ऑफ आवर यंगस्टर्स, बट अगेन गोइंग कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हमारा है, उसमें वही है कि आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री आपके लिए कुछ करे या इनफ नहीं कर रही। भाई इट्स अ लेसन दैट विल if you haven't learned by now, you learn the hard way. कोई आपके लिए you know, I mean, in reality कुछ करता नहीं, आप ही को जो करना है अपने लिए करना। और I am being very blunt about it, you know, although हम यहाँ बैठे हैं, ये भी एक किस्म का हम अपने 2 घंटे निकाल कर और आपके साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। बट इसके अंदर you know, I don't want to take any, मतलब तो मैं आपके ऊपर फेवर नहीं कर रहा है। Again, आपके लिए किसी ने कुछ नहीं करना, जो थोड़ा बहुत अगर कोई रास्ते में मिल जाता है हम जैसा, और 2 टिप्स यू नो फॉर गुड और बैड आपको दे देते हैं, इसको भी जेब में रखें। मेहनत आप ही ने करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मेरा आपसे यही वो है, डोंट कोई क्या कहता है JFK में आज नॉट फॉर द कंट्री के लोग आज को टिकट गुड करना है, आप ही ने करना है जो करना है। और आप यंग हैं और आप एक एज कम्पेयर टू मी एक बहुत एक अपना डायनामिक एज में यंग हुए, जहाँ दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स में होते हैं। दिस इज अ ट्रेमेंडस एडवांटेज। इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि कोई मेरे लिए कुछ करे और यू नो तब मैं आगे बढ़ूंगा, तो आई थिंक यू आर डूइंग योरसेल्फ सॉर्ट ऑफ अ मिस्टेक। All right, we have maybe 5 or 7 minutes. We're going to take these last 2 questions and then we're going to go towards the wrap up. But just kind of carry on. Go ahead, I'll do that in my wrap up. I just wanted to ask लोगों को अपनी कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट और जॉब क्रिएट हो रही है, लेकिन इसके पाकिस्तान के अंदर अगर मैं चाहूँ कि अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलूँ, सबसे बड़ी चीज़ जो फेस की जा रही है यहाँ पर वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, पोलिटिकल रीजन की वजह से जब तक स्टेबिलिटी नहीं है, अगर मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता हूँ तो 5 to 10 ईयर्स का प्लान बनाऊँगा। यहाँ पे जब तक स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर कैसे फोन आप करूँगा कि 5 to 10 ईयर्स के बाद जब मेरा बिजनेस वहाँ तक ग्रो करेगा, वहाँ से पॉसिबल जबकि आपने स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है, स्टेबल नहीं हो सकती, तो ना प्रोजेक्शन हो सकते हैं, ना ही अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो इतना बाहर अपॉर्ट की तरफ ही देंगे। बाहर अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं ग्लोब में, पाकिस्तान को काफ़ी डिपेंड करता है वैसे, लेकिन बाहर भी अगर आप देखिए जो रिसेशन ने हिट किया है, ठीक है, जो कंपनीज है जिस किस्म की कंपनीज में जो तो बंद हुई है कंपनीज बाहर, वो कितना 100 years 200 years ओल्ड कंपनीज थी, कोई बंद हुई है। रिसेशन ने पूरी ग्लोबली हिट किया, सिर्फ पाकिस्तान को हिट नहीं किया। जो लोग जो इशूज़ पाकिस्तान में और ग्लोबली काफ़ी जगह पर फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ इकोनॉमिकल रिसेशन है। हमारे थोड़ा सा पॉलिटिकल रिसेशन ज़्यादा इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिकल रिसेशन, ठीक है। तो इसको हमें ओवरकम इस तरह से करना है कि हम कम अज़ कम जो कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट जिस तरह से मैं आपकी IT में मेरा काम है,
हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं जिस तरह से कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। यू कैन डेवलप समथिंग फ्रॉम योर ओन होम, ठीक है, आपके सर्वर्स आपके होते हैं, आप वहाँ पे रखें और आप घर से काम करें। ज़रूरी नहीं कि आप रोड का आपने जाना ज़रूरी है उस दिन या आप ऑफिस जाएँ, आप घर से भी हमारे जिस तरह मेरे ऑर्गेनाइजेशन लोग काम कर रहे हैं उन सबके पास अपने घर पे इंटरनेट अवेलेबल है और उनके पास कंप्यूटर्स हैं, वो लोग हमारे सर्वर से कनेक्ट होते हैं और घर से काम कर रहे होते हैं। अगर आपके हालात ख़राब है वो घर से भी काम कर सकते हैं। अब आप होम ऑफिस डेवलप करें, इंस्टेड ऑफ आप बिल्डिंग्स में जाए, आप कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जाए काम करें, यू डेवलप योर ओन होम ऑफिस। ठीक है, अभी मेरे साथ पास बैठे हैं किसी भी कॉर्पोरेट से हैं, तो मेरा एक छोटा कज़न है वो ओमान में होती है, उसने भी क्या स्टार्ट किया वहाँ पे, उसने हैंडमेड टी शर्ट स्टार्ट कर दी है। वो वहाँ पे स्कॉटलैंड से ऑर्डर ले रहा है, आपसे टी शर्ट लेता है, वहाँ पे हैंडमेड प्रिंट करता है, उससे सोल्ड आउट कर रहा है, वो तकरीबन $100 की टी शर्ट सेल कर रहा है। वो IT इंडस्ट्री नहीं है लेकिन वो ऑर्डर फेसबुक के थ्रू ले रहा है, इंटरनेट थ्रू उसने वेबसाइट बनाई है और इस तरह से ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। उसको कोई बिल नहीं लगाएगी अपनी, और पाकिस्तानी, और इसी तरह से आप लोग भी पाकिस्तान में इस तरह से काम कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको खुद करना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं आपके पास। What happens naturally, industries team up with the students of universities to make their projects. ठीक है ना? अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता. You are asking us say how many projects we have and how many projects we don't have, or are we working on? कैंपस कनेक्शन में भी हुआ था कि वन गाय केम अप एंड आस्क्ड कि भाई होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट में हमारे पास प्रोजेक्ट है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, आपने कहा था एग्जैक्टली। तो अब आर यू गाइस टीमिंग अप विद स्टूडेंट्स? और हमारे पास इतने कॉन्फिडेंस नहीं होते कि हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करें, लाइक सर्वर्स का हम लोग सिक्योरिटी सिक्योरिटीज डिप्लॉय करें, एनहांसमेंट करें। सर्वर बनाने के लिए तो मुझे तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा ना, माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स सब कुछ अवेलेबल है, ओपन सोर्स का अवेलेबल, लेकिन इफ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर उसके लिए मुझे तो विंडोज सर्वर चाहिए होगी, वो ओपन सोर्स में अवेलेबल नहीं है, दैट्स नॉट ओपन सोर्स। तो उसके लिए why aren't you guys invoking the students from the university कि आप लोग प्रोजेक्ट करें, these are the projects, हम लोग चाहते हैं कि आप वहाँ से टीम अप करें, why aren't you doing this? At least इसका perspective ये है, and I'll be very frank with you कि अगर मैं IT के हवाले से बात करूँ तो recently अभी एक अपना टॉपिक था, इसी तरह IT CEOs आपस में बात कर रहे हैं फोरम पर, और टॉपिक यही था कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो इतने एम्प्लॉयबल नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि उनको फिनिशिंग कोर्सेज चाहिए। फिनिशिंग कोर्सेज क्या है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर ग्लोबली बज़वर्ड्स हैं, इस तरह अपना क्या बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के पास इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर उनके पास ट्रेनिंग है। ये IT CEOs की कॉन्वर्सेशन अभी लास्ट वीक में आपको I went back to my अपना project managers, the youngsters that have worked with me for the last 8-10 years, who now I trust to write my technology, and I showed them this forum conversation. उनका perspective बिल्कुल different था। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें finishing जो अपना courses है वो fine, that's just another एक dynamic से market की उसकी ज़रूरत नहीं है। What we need is graduates who have really dedicated the 4 years of computer science education, और जो वाकई अपनी फील्ड में और अपना प्रोफेशन या अपने करिकुलम को बहुत अच्छी तरह और बहुत एक्सीलेंट तरीके से वो समझें। You give us any fantastic computer science graduate, we'll be able to have him work on any technology in the world, given 1 to 2 months. और यही मेरी कंपनी में हम करते आए हैं। We built our company on fresh graduates for the last 10 years, और वही fresh graduate जो मैंने 2001 में हायर किया था, वो आज ग्लोबली मिक्सिंग का CEO। तो हमारा फॉर्मूला ये था कि fresh graduate अगर उसने अपने 4 साल वाकई कायम दाया नहीं किया अपनी और अपनी एक्सपर्टीज को वो ट्रूली समझता है, उसके बाद उसको दुनिया में किसी टेक्नोलॉजी किसी डोमेन में आप काम करवा सकते हैं। उसका रैप अप टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। So that's something I just want to share with you. I'm not interested in your project. I'm not interested in आप मेरे साथ क्या काम करेंगे as an intern while you are graduating. All I'm interested in वो इंटरव्यू में और मेरे टेस्ट में 15 मिनट में सामने आ सकता है कि आपने अपने 4 साल जो है ना वो वाकई बहुत सीरियसली और सब्सटेंस के हाथ में। I've been given an ultimatum to wrap up by 3:45, which is in 2 minutes.
So I'm going to make one quick announcement. I have one question and then we're going to have some wrap-up comments. It's about the panelists will be available. If you guys don't have classes, you're more than welcome to interact with them. The announcement is that I've got 2 or 3 people from CIO magazine who are collecting your feedback forms. For those of you who have filled in your feedback forms, give the form to Shafaq or Saurabh, or I think even Arslan in the back. Arslan, stand up. Stand up. Wave your arms, Maggie. Arms. Good. They'll give you a giveaway, and please be so that we can interact with you. For the panelists, I need to have Rabia do one announcement as to what's going to happen with the students here. I have one comment, and then we're going to have very, very brief remarks from the panelists so that we can wrap up in the next 2 or 3 minutes. इसके अलावा there's another एक किसी स्टूडेंट ने कहा था कि आप यहाँ से पैनलिस्ट तो आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद your young man here will be responsible for connecting you with each of these panelists. There's something we do known as the mentor nashtas. A lot of students have complained that they don't know what the work environment is like. These people have to treat you to a nashta or khana, even pizza will do, even one kebab will do. But they have to invite you, for those of you who are interested, they have to invite you into their office and they have to mentor you for a minimum of 2 hours. That's that commitment. आपको अगर यूसुफ साहब उसके बाद नहीं पसंद आए, which is impossible, then you can say कि भाई मैंने कोशिश की थी, at least मेरा 1.5 घंटा यहाँ जाया नहीं हुआ और मुझे 2 घंटे के बाद खाने को भी मिल गया था. So that's what you do. So that you are responsible for. And if CPM doesn't show up, then I will come and I'll work on it. So think about your wrap-up comments, and I have a quick comment for you. हमारे पास इस तरह से इंडस्ट्रियल अप्रोच करती है, इंडस्ट्री कैसे अप्रोच करती है, मैं आपको ये बताऊँ. लेट्स से अभी अगर वेट कर रहा है, वेट से आपने प्रोड्यूस कर लिया, आप उसके डायनेमिक्स बैंक के कैसे डिजाइन करते हैं, आप वो बता सकते हैं. तो उस पर आपकी बड़ी फंडिंग है. इस तरह से कई चीज़ें ऐसी हैं, बुक राइटिंग का 70 लाख रुपये होते हैं, एक बुक राइटिंग करने से अगर वो है तो आइडिया रिगार्डिंग प्रोजेक्ट इसमें काम करना पाकिस्तान में रहकर ही कर सकते हैं और अब्रॉड भी जा सकते हैं. तो it's very important. अगर आप काम आता है आपको, basically you can get money from everybody. Wait, can I have a quick wrap-up comment from you? Rabia, in your wrap-up, if you can just say what's in it. Thank you. Inviting me as Lava. Advice for the students, again, come up with some new ideas. आइडियाज़ के साथ आएँ और इंस्टेड ऑफ लोगों का वेट करें, वो आपकी तरफ आएँ, आप लोगों की तरफ जाएँ, जो न्यू आइडियाज़ उनको बोलें कि मैंने ये चीज़ डेवलप किया और मैं आपके ये काम कर सकता हूँ. लेट्स डू पार्टनरशिप. Rabia? Have any particular advice rather like a students are asking for like I wanted to go wherever they are, as faculty they are interested, they can bring 10 to 15 shuffle empty form. So we have the registration form on behalf of Nokia. We're going to give this to CDM. 1 faculty and 10 IT students or 10 students who are interested in being trained on Nokia platforms will be able to do so. This has to be a serious commitment because they'll be able to monitor what kind of activity. So that's what we're doing. Your work has to be your hobby. Simple as that. It has to be your pet. You want to have as much fun with your work as you have with your hobby and your pet. That's the only way you stand. You are Mahino. These people are also here in the same heat, in the same environment as you are. Please give them a big round of applause.
आगे आ जाओ। Mr. Shoaib Nizami. पुरानी दोस्ती होने